It's now cleared from the Rajya Sabha, so it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008, which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add पुरानी पेंशन का जो मामला है, keeping in view the recommendations of the 6th Central Pay Commission had said, a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pension so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules. It is not an amendment, I would like to underline this point. It is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-1/1/2006 and those of post-1/1/2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1/1/2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-1/1/2016 and post-1/1/2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance bill that is before us for consideration. जय हिंद दोस्तों, देखिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 8वां पे कमीशन को लेकर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में साफ कर दिया किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो बिल पास हुआ है ऐसा बताया जा रहा था कि 8वां पे कमीशन
8वां पे कमीशन जब लागू होगा तो जिनको ओल्ड पेंशन मिल रहा था उनका बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हम कल ही बताए थे कि ऐसा सरकार नहीं कर सकती और वो आज कंफ्यूजन दूर कर दी है निर्मला सीतारमण जी ने। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में आकर ये सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है कि जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो पेंशन और कर्मचारियों के अच्छाई के लिए किए जाएंगे, ना कि उनके बुराई के लिए। जी हाँ दोस्तों, छठा वेतन आयोग में ये चेंजेस था कि उन रिटायर जो छठा वेतन आयोग से पहले हुए थे उनका नियम कुछ अलग था, बाद में जो रिटायर होंगे उनका नियम अलग था, लेकिन 7वां वेतन आयोग में सबको बराबर कर दिया गया था। और 8वां वेतन आयोग जब आने वाला है तो इस तरह का कंफ्यूजन पूरे देश में फैला हुआ है कि 8वां पे कमीशन आएगा तो जो जिस समय से आएगा उससे पहले वाले जितने भी पेंशनर्स हैं उनको 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो ओल्ड पेंशन पा रहे थे उनको लाभ नहीं दिया जा रहा। ये पूरी तरह से निराधार है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ प्रिंट मीडिया पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर आप विश्वास ना करें। आपको एक ऑथेंटिक न्यूज जब तक लोकसभा राज्यसभा से ना आ जाता हो, खास करके वित्त मंत्री उस पर वक्तव्य ना दे दे संसद में, जब तक आपको विश्वास नहीं करना है किसी भी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको हमेशा ट्रूथ दिखाते हैं। ट्रूथ यानी ऑथेंटिक, यानी कह सकते हैं कि जो न्यूज जो तह की गहराई तक जाते हैं उस न्यूज की गहराई तक जाकर निकाल कर लाते हैं, यानी कि कह सकते हैं समुद्र के अंदर गोता मार कर मोती निकाल कर लाते हैं। द रियल फैक्ट्स हमेशा ओपीएस की आवाज़ बना है। और आपको बता दें, जितने भी ओल्ड पेंशन वाले लोग हैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। निर्मला सीतारमण ने आकर खुद कर बोला है, वो वीडियो भी हम आगे दिखाएंगे आपको। तो ये सब बातें चल रही है न्यूज में, तो आप घबराएं नहीं। वेतन आयोग जब आएगी तो सबको लाभ मिलेगा, चाहे तो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो या बाद रिटायर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सभी पेंशनरों को लाभ होगा, सभी कर्मचारियों का लाभ होगा। ये नियम यूनिवर्सल बनाए जाते हैं ताकि सभी को लाभ हो, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये आप सोच रहे हैं कि ओल्ड पेंशन वाले को छाट दिए जाएंगे, उसे 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, या फिर उसके नियम में ऐसे कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे, सीसीएस रूल 1972 में ऐसे बदलाव कर दिए जाएंगे ताकि उनका 8वां पे कमीशन से उनका लाभ ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा देश अराजकता से भर जाएगा, जगह जगह मारकाट शुरू हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी न्यूज़ चलाइए, हम सभी चैनलों से ये हम अपील करते हैं कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ चलाएं। प्रिंट मीडिया में थोड़ा सा कटिंग आ जाता है या कुछ आने से ऐसा नहीं है। आप कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहें, उसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए आप संसद में निर्मला सीतारमण क्या बोली है उस पर भी जाइए, प्राइम मिनिस्टर क्या बोले हैं उस पर भी जाइए। और हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि संसद न्यूज भी देखिए आप लोग। संसद न्यूज देखने से आपको ऑथेंटिकेशन आएगा, वहाँ से आपका पक्का न्यूज पता चलेगा। हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम उसे अपील करते हैं कि आप एक अच्छी न्यूज़ को देख रहे हैं, इसमें जो भी न्यूज़ दिया जाएगा वो ऑथेंटिकेशन होगा। 8वां पे कमीशन के बारे में जितना तरह से उपापोह की स्थिति बना हुआ पूरे देश भर में कि ओल्ड पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा इसका लाभ, ऐसा नहीं है, सबको लाभ मिलेगा। ये गारंटी लिख लीजिए कहीं सादा पेज पर, सबको लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें 8वां पे कमीशन की अभी देखिए, अभी चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लोग हल्ला, लोग शोर मचा रहे हैं। आपको बता दें अप्रैल महीना में 8वां पे कमीशन का चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा। 2 साथी उनके साथ जो सदस्य है वो भी अनाउंसमेंट हो जाएंगे। हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बने या जो भी बने, वो सरकार का फैसला होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अप्रैल महीना में 8वां पे कमीशन का चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा और वो उनको करीब करीब 1 से 1.5 साल रिपोर्ट बनाने में लगेंगे। यानी कि अप्रैल 2026 तक सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। अप्रैल मई जून तक ही मान लो, जून तक बनकर तैयार हो जाएगा और अब लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। जी हाँ दोस्तों, देखिए
फ्रेमवर्क बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। अभी चेयरमैन पद आएंगे, चेयरमैन आएंगे, उनके साथ 2 साथी आएंगे, सारा जगह से डेटा कलेक्शन किया जाएगा। आपको हम बता रहे थे कि पहले लोग जाते थे, महीनों वहाँ टाइम बिताते थे, तब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आज के समय में डिजिटल युग हो गया है। आप चाहें तो दिल्ली में बैठकर सारे डिपार्टमेंट का डेटा ला सकते हैं, सारे देश विदेश का भी डेटा आप मंगवा सकते हैं। तो ये है आज का युग। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। वो अलग बात है कि फ्रेमवर्क बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है और 7वां पे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, उसी टाइप से 8वां पे मैट्रिक्स भी बनाना पड़ता है। हर एक कर्मचारियों का अलग अलग लेवल है, हर एक कर्मचारियों का अलग अलग पे मैट्रिक्स बनता है, तो समय तो लगता है। तो इसीलिए आप एक जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया था पूरे देश भर में कि जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनको 8वां पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। ये वीडियो भी हम दिखाएंगे, या देख लीजिए, पहले वीडियो हम इसको डालने जा रहे हैं। सबसे पहले निर्मला सीतारमण का वीडियो उनका ट्विटर पर डाला हुआ है। आप चाहें तो संसद टीवी में, राज्यसभा में देख सकते हैं उनका भाषण। तो जो भी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, पेंशनर्स को लाभ होगा, ना कि उसे घटा होगा। ये चीज़ें निर्मला सीतारमण बोल रही है। लोग इसको एक अफवाह बना दिया गया कि अब तो ऐसा होगा कि सीसीएस पेंशन रूल सरकार जब चाहेगी जब बदल देगी, जब चाहेगी पेंशनर्स को लाभ देगी, 8 पे कमीशन, 9 पे कमीशन, 10 पे कमीशन की, जब चाहेगी जब उसे बंद कर देगी, क्योंकि देश का बोझ है। ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी देश का बोझ नहीं है, देश के लिए तरक्की का नजरिया है, देश के लिए आँख का नाक है, जो देश का उन्नति का प्रतीक है वो सरकारी कर्मचारी है। क्योंकि देश में सबसे सहभागिता, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स सरकारी कर्मचारी देता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कर्मचारी है तो देश है। वो अलग बात है कि अभी के समय में ठेकेदारी सिस्टम कुछ ज्यादा ही चलना शुरू हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गया है और उस हिसाब से जो होता है रिक्रूटमेंट वो सरकार नहीं कर रही है, ये अलग बात है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जितने हैं वो लोग देश की सेवा जान तक गवा कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए पैरामिलिट्री बाई फोर्सेस को, पैरामिलिट्री बाई फोर्सेस को ना ओपीएस मिल रहा है, यूपीएस और एनपीएस के बारे में उनको बलजबरिया थोपा जा रहा है, फिर भी अपनी जान की परवाह किए देश की सेवा कर रहे हैं। कल का न्यूज है, राहुल गांधी से लोग जाकर मिले, बोले कि देखिए साहब, हम बॉर्डर पर भी जान गंवाते हैं, देश के अंदर भी जान गंवाते हैं और विदेशों में जान गंवाते हैं। ना ही हमें शहीदी का दर्जा दिया जा रहा है और ना ही हमें ओल्ड पेंशन सिक्योरिटी दिया जा, ओल्ड एज सिक्योरिटी दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप मुद्दा उठाइए संसद में। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दा को लोक सभा में उठाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे कारवां बनता है। पूरे देश में विजय कुमार बंधु अलग जगह कर रखे हैं ओपीएस के लिए अभियान चल रहा है। 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। काली पट्टी बांधकर अपने कार्यालय में काम करें, डीएम कलेक्टर को ओपीएस का ज्ञापन दें और 1 मई को दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो ये सब चीजें किसके लिए हो रही है? सिर्फ आपके लिए, जो कर्मचारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कर्मचारी अभी ज्वाइन करेंगे, सभी से अपील करते हैं कि सब लोग दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा हों और सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाएं, ताकि सरकार भी आपके बारे में सोचे और आपका जो बात बोला जा रहा है कि आप बोझ हैं, वो बोझ नहीं है, देश की आन बान शान है। आप अभी देख लीजिए, वीडियो पर चल रहा है कि सरकार जो एमपी एमएलए है अपना वेतन तो बढ़ा लेते हैं, बाकी बेरोजगारी बोझ हो जाता है, सरकारी कर्मचारी का ओल्ड पेंशन बोझ हो जाता है। तो ये सब भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। जो देश की सच्चाई है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया भले ना दिखाता हो, लेकिन सोशल मीडिया दिखाती है। हमारे चैनल पर भी आप देख लीजिए, जो चीज़ें अभी चल रही है लगातार हम लोग डालते रहते हैं, ताकि सभी को पता चल सके देश में क्या हो रहा है। फिलहाल मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कन्फ्यूजन की स्थिति में ना रहें आप लोग। किसी तरह का चेंज नहीं होगा, सभी को फायदा मिलेगा 8वां पे कमीशन का।
और किसी तरह का पेंशन रूल में चेंज नहीं होगा। जो पेंशन रूल सीसीएस रूल 1972 है, जो सीसीएस रूल 2021 है, जो सीसीएस रूल 2023 है, वो रहेगा। छोटी मोटी चेंजेज होंगे लेकिन कर्मचारियों का हितगर होगा, ना कि उसे अहित किया जाएगा। किसी कर्मचारियों की गला नहीं घोट सकती सरकार। इस बात का ध्यान रखें और किसी के बहकावे में ना आए। जय हिंद, जय भारत।